A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous classes we were continuously studying the chapter 8 of your statistics for economics. The name of the chapter is measures of the central tendency arithmetic mean. Okay. So in last class we have studied, in the last classes we have already discussed about the measures of the central tendency. What is the meaning of the measure of the central tendency or an average? What are the functions as well as objective of the average, essentials of a good average, measures of the central tendency. So what is arithmetic mean? We have already discussed what is the meaning of the arithmetic mean, types of the arithmetic mean, in which we have discussed the two types, that is simple arithmetic mean and the weighted arithmetic mean. So in the while we are going through the calculation of the arithmetic mean, so it is of the three it is of the three series. First one is individual series, second one is discrete series, and the third one is continuous series. So all in these series we have to discuss the three methods in each of them. So in the individual series we have to study the direct method, assumed mean method. Assumed mean method is also called the shortcut method, and the step deviation method. Next we will discuss the discrete series. So in discrete series there are also three methods: direct method, assumed mean method, or the shortcut method, and the last one is step deviation method, and the last one is continuous series. So in the continuous series we will also discuss the three methods. First one is direct method, second one is assumed mean or the shortcut method, and the last one is step deviation. So in the last class we will start the individual series, in which we have discussed the direct method and the shortcut method. Okay, so in today's class we are going to start the next method, that is step deviation method. So let's start. Step deviation method. Okay, so this method simplifies the shortcut method. ये जो मेथड होता है वो जो शॉर्टकट मेथड है उसको सिंप्लीफाई करता है, सिंपल वे में इसको प्रेजेंट करता है. सो द कैलकुलेशन कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड बाय द डिवाइडिंग ऑल द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम मीन बाय द कॉमन फैक्टर. इसका जो कैलकुलेशन है इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं कि जो हम लोग डेविएशन निकालते हैं ना, डी कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से. कॉमन फैक्टर यहाँ पे मतलब है कि जो भी हम अगर सीरीज देख रहे हैं, जैसे वेजेस देखते हैं, जो भी वेरिएबल देख रहे हैं, उसमें जो भी सारे नंबर्स है उसमें से कॉमन फैक्टर देखने का मतलब ये है कि वो अगर नंबर है तो वो सारे नंबर्स किससे डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं ये इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा. कॉमन फैक्टर ये होगा इसमें यहाँ पे 10, क्योंकि 10 ही ऐसा नंबर है जिससे हर एक यहाँ पे जितना नंबर है वो 10 से डिविजिबल हो सकता है. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी हमारा डेविएशन आता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, ओके. ओके, ठीक है. तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं. इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x bar means arithmetic mean a plus summation d c आपका होता है, सॉरी d अपॉन n इंटू c. ठीक है, d डैश हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, we will see. ठीक है, c यहाँ पे क्या है, c here is the common factor. यहाँ पे c क्या है, आपका कॉमन फैक्टर है, जो मैंने अभी बताया कि कॉमन फैक्टर हम क्या लेंगे जिससे सारे भी जो भी नंबर सीरीज में हैं वो डिविजिबल होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डी डैश है, हमें डी डैश निकालना है. वो डी डैश कैसे निकालेंगे, देखिए डी अगर हमको कैलकुलेट करना होता है डी, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे हम ए क्या करते हैं, अज्यूम्ड मीन लेते हैं. और अगर हमें डी डैश निकालना है तो हम निकालते हैं डी अपॉन सी. सी यहाँ पे क्या है, कॉमन फैक्टर है. जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम क्या करते हैं, डेविएशन को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, सो दैट वी गेट द वैल्यू ऑफ डी डैश. हम फिर वो डी डैश की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो एक इस पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग.
वो जो क्वेश्चन है वो हर बार सेम ही लेके रखा है इसने। जैसे एक एक हर एक पे एक एक एग्जाम्पल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, नेक्स्ट आपका x ले लेते हैं। यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया ये। x आपका क्या होगा? x है आपका 140 150 180 200 220 250 1 2 3 4 5 6। ये आपका 250 260 300 350 एंड दी 450। आपको पता है आपका n कितना है? 10 है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे d। d कैसे निकालते हैं? x माइनस a। d हम लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन में भी निकाले थे शॉर्टकट मेथड में। d हम कैसे निकालते हैं? डेविएशन x माइनस a। अब हम इसमें से क्या करेंगे? एक अज्यूम्ड मीन को चूज कर लेंगे। तो मैंने 220 को क्या ले लिया? अपना अज्यूम्ड मीन। तो a यहाँ पे क्या हो गया? 220। अब हमें क्या करना है? माइनस x माइनस a। 140 माइनस 220 150 माइनस 220 180 माइनस 220 200 माइनस 220 220 माइनस 220 250 माइनस 220 260 माइनस 220 300 माइनस 220 350 माइनस 220 एंड 450 माइनस 220। तो हम लोग क्या वैल्यू पाएंगे? माइनस 80। नेक्स्ट है आपका माइनस 70। नेक्स्ट है आपका माइनस 40 माइनस 20 0 30 40 60 सॉरी 80 220 है 80। नेक्स्ट है आपका 130 एंड द लास्ट वन इज 230। हमको इसमें से माइनस करना है। नेक्स्ट अब आपका क्या स्टेप हो गया? डी हमारा निकल गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? डी डैश देख रहे हैं। डी डैश यहाँ पे कैसे निकाला है? डी अपॉन सी। अब ये कैसे हम निकालेंगे? डी डैश डी अपॉन सी। अब इसमें से देखिए ये जो सारा आपका वैल्यूज दिया है इसमें से आपको कॉमन फैक्टर देखना है, सी देखना है। कॉमन फैक्टर इसमें देखिए हम कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जो सारे से वो डिविजिबल है। ठीक है, लास्ट में आप देखिए क्या है? 0 है। 0 है तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 20 लेंगे तो सारा डिविजिबल नहीं हो सकता है। बट अगर हम 10 लेंगे तो 10 से क्या है? सारे नंबर 5 से भी हो सकते हैं। बट जब अगर 5 से करेंगे तो क्वेश्चन क्या है? बहुत लंबा हो जाएगा। 10 से हम लेते हैं। 10 से सारे नंबर क्या है? डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम c यहाँ पे क्या ले लेंगे? c विल इक्वल टू 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें नेक्स्ट स्टेप है d अपॉन सी। मतलब माइनस 80 अपॉन 10 क्या हो गया? माइनस 8 माइनस 70 अपॉन 10 माइनस 7 माइनस 40 अपॉन 10 माइनस 4 माइनस 20 अपॉन 10 आपका क्या हो गया? माइनस 2। नेक्स्ट आप क्या करते जाओ? 0 30 अपॉन 10 3 40 अपॉन 10 4 80 अपॉन 10 8 130 अपॉन 10 13 एंड 230 अपॉन 10 20। अब आपको क्या करना है? समेशन डी डैश। अब आपको इनको पूरा सम कर लेना है। इन सारे को सम करिए और इन सारे को सम करिए। बट इसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आएगी। तो आप इसमें से ये सम को इसमें से माइनस कर देंगे सो दैट हम लोग क्या है? डी डैश को फाइंड आउट करेंगे। तो आपका डी डैश कितना आ रहा है? डी डैश आ रहा है 30 आपका क्या आ रहा है? डी डैश आ रहा है। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूला पे हमें ए की वैल्यू पता है, अज्यूम मीन 220 है। सी हमें पता है, सी हमने 10 लिया है। डी डैश की हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली, एन क्या है? 10 है। अब हम क्या करते हैं? सारे वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ए आपका क्या है? 220 प्लस 30 अपॉन 10 इंटू 10। ठीक है, एन आपका क्या है? 10 है। एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 10 है। और आपका कॉमन फैक्टर सी क्या है? यहाँ पे कॉमन फैक्टर आपका 10 लिया है हम लोग ने। तो क्या करेंगे? एक्स बार इक्वल टू, ये आपका 10 कट गया, 220 प्लस 30 देन एक्स बार इक्वल टू 230। आपका आंसर आ गया।
ठीक है, देखिए तीनों मेथड से हम लोग ने किया, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम्ड मीन मेथड से एंड द स्टेप डेविएशन से। तीनों मेथड से आंसर आपका क्या आया है, सेम आया है। देख लीजिए हर बार हमारा आंसर क्या आया है, 230 ही आया है। तो ये आपका क्या था, ये हम लोग ने क्या पढ़ा, ये हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज में तीनों मेथड पढ़ा। तीनों मेथड क्या क्या था, फर्स्ट था आपका डायरेक्ट मेथड था, सेकेंड आपका अज्यूम्ड मीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड दी शॉर्टकट मेथड, एंड द थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। ये तीनों हम लोग ने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये इंडिविजुअल सीरीज के हमने ये तीनों पढ़ लिए, अब हमें क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। अब आप इसके सारे जो भी आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी पे बेस्ड, ये सारे मेथड पे, ये सारे फॉर्मूला पे आप क्या करते रहिए, एक प्रॉपर कॉपी बना के उस पर सॉल्व करते रहिए लाइन बाय लाइन। और जो जहां पे नहीं समझ में आए, सो वी विल डिस्कस इन दी ऑनलाइन क्लास। ओके, तो नेक्स्ट मेथड आपका क्या हो गया, डिस्क्रीट सीरीज। ओके, क्या है ये डिस्क्रीट सीरीज? Discrete series is, in this series there are frequency corresponding to different values of the variable। देखिए जब हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ा था तो हमने देखा कि वहां पे कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, बट डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल है उनके साथ ही साथ उनकी फ्रीक्वेंसी भी दी होगी। अगर 10 आ रहा है तो 10 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो इसमें क्या है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज आर there, frequencies are given। okay, okay, values of the free variables are arranged in group which are exactly measurable। ठीक है, वैल्यूज जो भी हैं वेरिएबल के, उनको क्या है, वो अरेंज होंगे ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। जैसे ग्रुप 1 में क्या है, ग्रुप 1 में है तो उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप बी है तो उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप सी है उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करके सारा दिया होगा। इसमें भी आपके पास 3 मेथड्स हैं, 3 मेथड्स आपको पढ़ना है। 3 मेथड आपको पता है क्या क्या मेथड है इसमें, डायरेक्ट मेथड, ओके, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट, एंड द लास्ट वन इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये तीनों मेथड हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। फर्स्ट आपका क्या है, डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है, डायरेक्ट मेथड को पढ़ना है। ओके, डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग सबसे पहला क्या डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड। ओके, अब डायरेक्ट मेथड में देखते हैं क्या है। सो इन दिस मेथड फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस मेथड में क्या करेंगे हम लोग, जो भी फ्रीक्वेंसी दी होगी ईच ऑब्जर्वेशन की, हर ऑब्जर्वेशन की, उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितनी भी वैल्यूज है ऑब्जर्वेशन की, उसको हमको उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो द वैल्यूज सो ऑब्टेन्ड आर सम्ड अप एंड द डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू आई मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको सारा सम करेंगे। फिर जो भी टोटल नंबर है आपका ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर जो भी फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वेशन तो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में कर रहे थे, इसमें जो भी टोटल नंबर आपकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से देन वी विल डिवाइड। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया आपका, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ। ठीक है, x
एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ. यहाँ पे एफ क्या है? एफ इज डिनोटेड एज द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी है, जिसको हमको जितने भी वेरिएबल्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, फ्रीक्वेंसी को हम इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. जितनी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग सम करके एंड देन वी विल डिवाइड. ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद इनको सम कर देंगे. जो भी मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई उसको सारे को सम कर देंगे और जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको सम करके एंड देन वी विल डिवाइड. हम डिवाइड करें. तो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मार्क्स दिया है बच्चों का, मार्क्स एंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. पहला है आपका, इसको मार्क्स है आपका एस, फ्रीक्वेंसी आपकी एफ. ओके, पहला 10, 20, 30, 40 एंड दी 50. लास्ट हम क्या लेंगे? इसका टोटल लेंगे सबका. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? 15, 10, 40, 20 एंड दी 15. ठीक है, अब आपको क्या करना है? हमें एफ एक्स निकालना है. एफ एक्स निकालना है. एफ एक्स निकालने के लिए एफ आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है एंड द एक्स इज गिवन एज द मार्क्स. अब आपको 10 इंटू 15 करना है, मल्टीप्लाई करना है. तो ये क्या हो गया आपका 150, ये आपका 200, 4 3 जा 12, 1200, देन 4 2 जा 8, 800, 15 5 जा 75, 700. अब आपको इनको सारा सम कर देना है. इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 3100. और आपको डिवाइड किससे करना है? समीशन ऑफ एफ, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. आप सारी इन फ्रीक्वेंसी को सम कर देंगे, देन एफ इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? 100. ठीक है, इतना क्वेश्चन हो गया. अब हमें एफ एक्स पता चल गया 3100 और हमें फ्रीक्वेंसी भी, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चल गया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें इनका फॉर्मूला पे पुट कर देना है. ठीक है, तो एक्स बार इक्वल टू आपका क्या हो गया? समीशन एफ एक्स इज 3100 अपॉन आपका ये क्या दिया है? इसका सम क्या दिया है? 100 दिया है. आपका क्या आ गया? 31. तो एवरेज मार्क्स जितने भी स्टूडेंट हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना है? 31 है. ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल सा क्वेश्चन था कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, आपके पास फ्रीक्वेंसीज भी दी होती. इंडिविजुअल सीरीज में आज अभी तक हम लोगों ने कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं देखी, बट डिस्क्रीट सीरीज में अब आपके क्या होंगे? फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होंगी, जिसमें आपको क्या करना है? जितनी भी फ्रीक्वेंसी है और ऑब्जर्वेशन है जितने भी वेरिएबल्स के, उनको मल्टीप्लाई करना है. उन मल्टीप्लाई करके हमको उनको सम कर देना है एंड देन डिवाइड किससे करना है? टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी. जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम सम करेंगे एंड देन वी विल डिवाइड. तो इस क्वेश्चन में हमने मार्क्स लिया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया. ये सारे आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड दी ये सारे मार्क्स हैं एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट. 10 मार्क्स कितने बच्चे पाए? 15 पाए. 20 मार्क्स 10 स्टूडेंट. 30 मार्क्स 40 स्टूडेंट. 40 मार्क्स 20 स्टूडेंट एंड 50 मार्क्स 15 स्टूडेंट पाए. देन हम लोग को क्या करना है? समीशन एफ एक्स करना है. तो 10 इंटू 15, 20 इंटू 10, 30 इंटू 40, 40 इंटू 20, 800, 50 इंटू 15, 750 एंड देन वी समड अप. हम इनको सम कर देंगे. सम करने पे 3100 आ रहा है एंड डिवाइडेड बाय दी समीशन एफ. समीशन एफ से हमको डिवाइड करना. तो ये जो भी जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है हम उसको सम करेंगे. देन वी विल पुट ऑल दीज वैल्यू ऑन दी फॉर्मूला एंड वी गेट दी एवरेज नंबर ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इज 31. ठीक, एवरेज मार्क्स कितना आ रहा है बच्चों का? 31 है. ठीक है, अब नेक्स्ट हम मेथड पढ़ते हैं, शॉर्टकट मेथड. Next method is shortcut method.
shortcut method. So we can use this method to calculate arithmetic mean in order to simplify the arithmetic calculation. इस मेथड का हम यूज क्यों करते हैं कि अर्थमेटिक कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए. सो डेविएशन टेकन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, इसमें हम क्या करेंगे, कोई भी जो भी डेविएशन है अज्यूम्ड मीन से बोलेंगे एंड आर मल्टीप्लाइड विद द फ्रीक्वेंसी. फिर हम लोग क्या है उस फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे टू गेट दी एफडी को फाइंड आउट करने के लिए. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन एफ. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है. देखिए इसको थोड़ा कॉमन है, ये ए प्लस अर्थमेटिक मीन इक्वल टू ए प्लस ए, यहाँ पे क्या है आपका अर्थमेटिक मीन है, प्लस समेशन ऑफ एफ इंटू डी. एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, डी आपको पता है डी इज एक्स माइनस ए. उसको हम डिवाइड कैसे करेंगे, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब इसका भी क्वेश्चन देखते हैं. इसका क्वेश्चन वही सेम वाला हम लोग ने लिया है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. मार्क्स कितना है, 10, 20, 30, 40 एंड 50. 15, 10, 40, 20, 50. नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे डी कैलकुलेट करना है. डी इक्वल टू एक्स माइनस ए. आपको पता है डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए के. अब अज्यूम्ड मीन, देखिए मीन अब इसमें आया है, इसमें का जो अज्यूम्ड मीन हम कहाँ से लेंगे, एक्स से लेंगे. ठीक है, इसमें का जो भी हम लोग को अज्यूम्ड मीन लेना है, जो हमको अज्यूम कर रहे हैं वो हमको कहाँ से लेना है, एक्स से लेना है. ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका. तो हमने बताया था कि अज्यूम मीन कहाँ से लेते हैं, जो भी जितनी भी दी है उसके मिड वाला लेते हैं. जैसे अब इसका मिड क्या है, इन 5 का मिड क्या है आपका 30 है, तो ए यहाँ पे अज्यूम्ड मीन हो गया. तो ए हो गया यहाँ पे 30. देन एक्स आपका क्या है, एक्स है आपका 10 माइनस 30 माइनस 20. नेक्स्ट है आपका एक्स क्या है, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 minus 30 which is equal to 0, 40 minus 30 10, 50 minus 30 which is equal to 20. सिंपल, समझ में आया. d इक्वल टू एक्स माइनस ए, हम लोग डेविएशन निकालते हैं. अज्यूम मीन यहाँ पे x से लेते हैं. अज्यूम मीन हम कहाँ से लेते हैं, x से लेते हैं. तो अज्यूम मीन मतलब कि हमें अज्यूम करना है कोई मीन. तो इसमें से हम ये देखते हैं कि जितनी भी वैल्यूज है उसका जो भी मिड है, मतलब इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो. अगर 5 दिया हुआ है तो बीच का ले रहे हैं, 6 दिया है तो आपका थर्ड और फोर्थ में से हम कोई ले रहे हैं. तो ये आपका बेसिकली हम यहीं से ही लेते हैं. फिर ए क्या है आपका 30 हो गया, अज्यूम कर रहे हैं हम लोग मीन. देन अब क्या निकालना है, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए. एक्स आपका क्या है 10, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 20. अब नेक्स्ट है आपका एफ डी निकालना. एफ डी कैसे निकलेगा, एफ डी आपका निकलेगा मल्टीप्लाई ऑफ एफ इंटू डी. ठीक है, तो क्या हुआ आपका, हाँ 15 इंटू माइनस 20 क्या हो गया आपका, माइनस 15 इंटू माइनस 20 हो गया आपका माइनस 300. 10 इंटू 10 माइनस 100. 40 इंटू 0 40 होगा. ठीक है, 0 मैं आप लोग को कंफ्यूज कर रही थी. 40 इंटू 0 क्या होगा, 0 होगा. 20 इंटू 10 30, 20 इंटू 10 200, 15 इंटू 20 15 टू जा 30 देन 300. ओके, अब नेक्स्ट आपके पास क्या करने को है, आपको पता है हम समेशन एफ डी निकालेंगे. एफ डी निकालने के लिए इसको प्लस करेंगे, कितना आया 500. इसको प्लस करेंगे, माइनस 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 माइनस, राइट, नो माइनस माइनस प्लस होता है. तो 300 और 100 में प्लस करेंगे तो कितना हुआ 400, माइनस 400. ये किसके इक्वल हो गया 100.
तो एफ डी आपका क्या हो गया 100 हो गया। ठीक है, समझ में आया ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस कर देंगे। फिर ये क्या है आपका 500, इसका साइन तो माइनस का है, तो 500 माइनस 400 विच इज इक्वल टू 100। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, समीशन ऑफ एफ। ये तो हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये किसके इक्वल आ रहा था 100 के इक्वल आ रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट ऑल दी वैल्यूज ऑन दी फॉर्मूला। ए आपका क्या है यहाँ पे, ए इज 30 प्लस एफ डी कितना है 100 अपॉन एफ इज 100। ओके, 31 देखिए, हर एक फॉर्मूला से आपका आंसर सेम ही आएगा। उस सवाले से हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से भी किया तो उसका आंसर क्या आया था 31 आया था, और नेक्स्ट शॉर्टकट मेथड से भी किया तो उसका आंसर क्या आया आपका 31 ही आया है। तो हर एक मेथड से अगर करेंगे वही सेम क्वेश्चन तो आंसर विल बी सी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेप डेविएशन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड किसका पढ़े हम लोग, डिस्क्रीट सीरीज। ओके, सो वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई अरिथमेटिक कैलकुलेशन डन बाय दी shortcut we can further simplify the arithmetic calculation done by the shortcut method। जो भी हम लोगों ने shortcut method से किया था अब उसको हम simplify करेंगे। so all deviation taken from the assumed mean, जो भी deviation हम लोगों ने assumed mean से लिया था so it will divided by the common factor। वो क्या होगा, common factor से divide हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है आपका, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन ए प्लस समेशन एफ इंटू सी। ठीक है, फॉर्मूला में देखिए लास्ट जो फॉर्मूला पढ़े थे और उसमें फॉर्मूला जो पढ़े थे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए आपको पता है अज्यूम्ड मीन है, सी आपको पता है कॉमन फैक्टर है, एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी है, एंड डी क्या है, डी डैश आपको बताया था मैंने। डी डैश कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस ए, सॉरी डी निकालेंगे हम लोग एक्स माइनस ए, देन डी डैश इक्वल टू डी अपॉन सी। डी अपॉन सी के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करें। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेम क्वेश्चन है, मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है आपका 10, 20, 30, 40, 50, 15, 10, 40, 20 and the last one is 15। ओके, अब हम लोग क्या सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे पहले डी। डी क्या है आपका x माइनस ए है, d इक्वल टू एक्स माइनस ए। आपको पता है यहाँ पे हमने ए क्या लिया था, ए लिया था 30, सेम ए। अब आप उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने पहले किया था ना x माइनस ए, क्या क्या आया था याद करिए, इसमें से माइनस किया था तो -20, -10, 0, 10 एंड दी 20, ये किया था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी डैश निकालेंगे। डी डैश कैसे निकलेगा, डी अपॉन सी निकलेगा। अब इसमें से देखिए कि इसमें कॉमन फैक्टर आपको देखिए क्या है, किससे ये सारे वो हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ये हम लोग देख सकते हैं, ये हम लोग सारे किससे कट हो जाएंगे, 10 से कट हो जाएंगे।
तो यहाँ पे हम लोग c क्या ले लेंगे 10 ले लेंगे। कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो गया 10 हो गया, क्योंकि 10 से ही सारे जो भी नंबर्स है वो क्या हो जाएंगे, वो डिविजिबल है। तो c d अपॉन सी क्या हो गया -2 -20/10 -2 -10/10 -1, ये क्या होगा आपका 0 0 10/10 क्या होगा आपका 1 होगा। वेरी गुड। 20/10 क्या होगा आपका 2 होगा। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसमें आपको एफ डी डैश निकालना है। डी डैश तो निकल गया, एफ डी डैश निकालना है। एफ डी डैश कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई दिस टू दिस, 15 इंटू -2 -30, 10 इंटू -10, 40 इंटू 0 40, 40 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 15 इंटू 20 30, 40 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो अब इसको आप क्या कर लीजिए, टोटल कर लीजिए। समीशन एफ डी डैश आपका क्या हो गया 30 प्लस 50, आइए प्लस माइनस माइनस प्लस देन 40, ये किसके इक्वल आ गया 10। तो एफ डी डैश किसके इक्वल हो गया आपका 10 के इक्वल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, समीशन आपको पता ही है, ये किसके इक्वल है 100 के, ये सम करेंगे तो 100 आएगा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट कर देना। ए आपका क्या है 30 प्लस एफ डी डैश क्या है 10/100 इंटू कॉमन फैक्टर हमने क्या लिया है 10 लिया है, 30 + 1 31 आ गया आपका स्टेप डेविएशन मेथड से। तो हम लोग जो भी फॉर्मूला लगाएंगे, जितने भी फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम लोग ने क्या किया, आज क्या क्या पढ़ा, हम लोग ने इंडिविजुअल सीरीज का स्टेप डेविएशन पढ़ा, डिस्क्रीट सीरीज का हमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, शॉर्टकट मेथड पढ़ा एंड द स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा। तो आप लोग जो भी अगर वैल्यूज सेम है, डिफरेंट फॉर्मूला लगाएंगे तो वैल्यूज आपकी क्या आएगी, वो सेम ही आएगी। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस दी कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग सारे इसके डायरेक्ट मेथड, assumed mean and the step deviation पढ़ेंगे। Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class also. Thank you.